human beings can hear the radar pulses. They were not just making it up. They wanted to know what the significance of something like this would be if man had another sensory motor input. And of course, the possibilities are staggering. Like you have another sense like sight, only you're not using it. What do you think that would imply? It means you're walking around being blind to something that's constantly giving you inputs, but you're not aware of it. Well, the first implication on that would be a weapon. There was some concerns because the American embassy in Moscow was reported to have been bombarded by microwaves. So the speculation was that are they trying to gather intelligence, or are they trying to actually mess with the brains of the embassy personnel? So there was some experiments being conducted. Of course, then they were involved in some other things which I'm not involved in, which are classified in Nature. Dr. Lin configured the equipment for the 1973 experiment performed at the Walter Reed Army Research Institute, wherein the experimenters successfully encoded speech and transmitted it via microwaves. The subject of the experiment, Dr. Joseph C. Sharp, was able to hear the spoken words for 1 through 10, and the results were published in the Journal of the American Psychological Association. And while Dr. Sharp verified these results during a personal interview with the filmmakers, he declined to have his voice or image recorded, stating that the technology was still too controversial. In ordinary sound perception, sound that goes into the ear canal gets amplified by the small bones in the middle ear and then gets to the inner ear where the cochlea resides, and in the cochlea is converted to electrical impulse. But fundamentally, the physical phenomenon that enables it is mechanical movement of particles. So the mechanical wave transmitted by the bones of the middle ear gets converted at the inner ear into the electrical impulses. 2, 3, 2, 1. But in the case of a microwave auditory effect, is the source is electromagnetic. So if you expose the biological tissue to a pulse of microwave energy, the tissue expands and induces a vibration. Instead of going through the middle ear, the microwave-induced vibration gets propagated to the inner ear directly, and at the inner ear is converted to electrical impulses again. 1, 2, 3, 4. And in this case, and the vibration in the human tissue, if the tissue is the head, for example, would fall within the auditory range of a human subject. All applicants for voluntary admission are held a minimum of 15 days for exam. पिक 1 में कल्प्रिट विक्टिम को मॉनिटर कर रहा है. कल्प्रिट विक्टिम के स्कल में आवाज़ और इमेज प्रोड्यूस कर रहा है. पिक 2 में रिमोटली कुछ लोग विक्टिम को मॉनिटर कर रहे हैं और विक्टिम का डाटा भी मुख्तलिफ केसेस में इस्तेमाल किया जाता है. वजबासुमाहु या जुबासुमाहु शयातीन अला सूरत मन क़द मात मिन अल आबाए वल उम्महात वल इख्वान फयाती अहदुहुम इला अबीहि व अखीहि फयक़ूल अलस्तु फुलानन अलस्ता तारिफुनी. उसके साथ शयातीन जिन का लश्कर होंगे और उनकी सूरतें वो बना देगा लोगों के मरे हुए माँ बाप और भाइयों की सी, और वो आकर कहेंगे देखो मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, पहचानते नहीं मुझे, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, पहचानते नहीं हो मुझे, अरे मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, पहचानते नहीं हो, ये खुदा है, इसको करो सजदा. आम कुफ्र इल्हाद. और एक बात जो सबसे अहम है, जो आज शुरू हो चुकी है और मैं तफसील बयान कर चुका हूं, कायरो कॉन्फ्रेंस और बीजिंग कॉन्फ्रेंस और बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस, और वो भी यूनाइटेड नेशंस के तहत. आखिर में यखरुजु इलैहि निसा, आखिर में जो उसकी पैरवी के लिए निकलेगी घरों से वो औरतें होंगी. हत्ता इन्न रजुला लयरजिउ इला उम्मिही व इब्नतिही व उख्तिही व अम्मतिही व यूसुफा. यहां तक कि एक बंदा मोमिन जाएगा दौड़कर अपने घरों में, अपनी मां को, बहन को, बेटी को, बीवी को बांध कर जकड़ कर रखने की कोशिश करेगा और वो रस्सियां तोड़ाकर उस दज्जाल के पीछे भागेगा. वो नक्शा है आज.
वॉइस टू स्कल फंक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कान के टिश्यू से टकराती है और इनर एयर कॉकलिया इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट कर देता है और विक्टिम को स्कल में वॉइसेस सुनाई देती हैं। विक्टिम 24 घंटे इन वेव्स की कैद में होता है। वह 24 घंटे वॉइसेस सुनता है। अगर नींद आ जाए तो नींद में विक्टिम को सुनाई नहीं देता, लेकिन आंख खुलते ही वॉइसेस सुनाई देने लगती हैं। इस तरह कई सालों से वॉइस टू स्कल का फंक्शन इस्तेमाल करके विक्टिम को फिजिकली डैमेज किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये लोग कैसे 24 घंटे विक्टिम के स्कल में वॉइसेस जनरेट करते होंगे। क्या आजकल इस तरह की जॉब्स हैं जो लोगों के स्कल में वॉइसेस डालते होंगे? अगर 24 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो रोजाना 3 बंदे चाहिए होंगे जो विक्टिम को टॉर्चर वेयर के जरिए टॉर्चर करते होंगे। मैंने अपने आप को इस तरह समझा लिया कि शायद ये लोग रिकॉर्डिंग करके कंप्यूटर अटैच कर देते हैं जो मोबाइल, रेडियो, टीवी या फिर डिफेंस का कोई नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और वॉइसेस मेरे स्कल में डालते रहते हैं। अब आप सोचें विक्टिम का क्या हाल होता होगा जो कई सालों से वॉइसेस सुन रहा है और इसको टॉर्चर किया जा रहा है। इसकी क्या हालत होती होगी? हुसल के बाद जब मैं नाक में पानी डालता हूँ तो इस तरह लगता है कि कान में सुराख है जो गले और कान को मिला रहा है। फिर मैं अपने आप को ये कहकर तसल्ली दे देता हूँ कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब ये वॉइसेस किन की होती हैं? अगर आप तस्वीर में देखें तो आपको विक्टिम और इसके इर्द गिर्द बहुत से चेहरे नज़र आ रहे होंगे। टॉर्चर वेयर वाले नाम लेकर वॉइसेस आपके स्कल में डालते हैं। कभी आपके रिश्तेदारों का नाम लेते हैं, कभी सियासतदानों का, कभी जर्नैलों का, कभी वो लोग जिन लोगों से आप मिल चुके होते हैं। मैंने सोचा कि आखिर किन लोगों की वॉइसेस होंगी? क्या वाकई मेरे रिश्तेदार, मेरे मुल्क के सियासतदान या मेरे मुल्क के जर्नल इतने जालिम हैं? लेकिन डॉक्टर इसरार की वीडियो ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि यह दजाली फितना है जिसमें आपके रिश्तेदार कहेंगे कि इसकी बात मानो, या फिर वो औरतें हैं जो अपनी रस्सियां तोड़कर दजाल की पैरवी कर रही होंगी और कह रही हैं कि इससे शादी कर लो, मेरे से शादी कर लो, या फिर मैं शादी कर लेती। ये स्ट्रेटजी है साइकोट्रॉनिक वेपन की। इससे आप में मुल्क से नफरत, लोगों से नफरत पैदा हो जाती है। आप इस मौके की तलाश में होते हो कि कब आप मुल्क छोड़कर जाओगे, और शादी भी आप किसी भी पाकिस्तानी से नहीं करोगे।